Yes, now it's started. So we have completed number system yesterday: binary, octal, hexadecimal, decimal, and all. Right? Now, next topic is BCD number. There are some binary codes, which computer basically works on it, right? And one of the binary codes is BCD, binary coded decimal. Okay, 1 second, please. Do you know about binary coded decimal, BCD number? Have you heard about ASCII code? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. It's a code for the letters on the keyboard, like 91. Yes, yes. So see, there is a table. If you will talk about the ASCII code, it means American Standard of Standard Character of Information Interchange, right? For every letter which is present on keyboard, there is a binary number for each and every letter. For suppose we have A, right? Then we for A we have 65. It is fixed. So how it is fixed and how we can work on it? And the table represents the thing, right? See, here is rows and columns. You can see these are the columns and these are the rows, right? I have already said that A is for 65. Means 65 is reserved for A. How it is possible? See, there is a binary number on the top and in the left also. See, how it is possible? 1 0 0 0 0 1 second. 1 second. First of all, we'll write this one 1 0 0 0 and then 0 0 1. What will be the result of this one? And the next one will be 0 1 0 0 0 0 1. See, this is for A and this is for B. How I have written? I have written like this. First, I have written for A, just go on this row 1 0 0 0. This one 1 0 0 0, right? And from the column 0 0 1 0 0 1, right? Is it clear? हेलो, Yes, sir. देखो आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी साफ। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर। ये बीच बीच में आने जाने का भी झंझट लगा रहता है ना। मैं कोई आएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया स्क्रीन पे ही रहता हूँ क्योंकि बार बार आने जाने में दिक्कत होती है। ये आते हैं तो इस टेबल को हम कैसे समझेंगे इसकी बात बता रहा था मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए है, ए हमने लिया तो ए का हम क्या लिखेंगे, रोज नंबर लिखेंगे
एंड कलम नंबर लिखेंगे। तो कलम क्या है 1 0 0, रोज क्या है 0 0 0 1। सी 1 2 4 8 16 32 एंड 64। 64 पे 1 है और 1 पे 1 है, तो कितना हुआ 65। और A we have 65 in binary number. So BCD code is CII code is 65 for A. Now we'll write 100 column number, then row number is 0 0 1 0, right? 0 0 1 and 0. Then what will be the 2 and 64? It means 66. Similarly, we can understand means for which key what the ASCII code is. Tell me if you have any problem, any doubt in this one, you can ask. Sir, why do we have that 0, 1, 2, 3 like in the decimal number as well in the top and This bottom? is the serial number of that one. Okay. And for this serial number, we have just written binary code. For 0, the binary number is this one. For 1, the binary number is this one. For 2, binary number is this one. For 3, we have this one. Means only the serial number of row, means you can say that the row number is in binary format over here. Whatever decimal number we have presented, the same number is presented over here in binary number. Okay, sir. Is it clear? Yes, sir. Thank you. Anybody who has any doubt about this one, you may ask. Yes, sir, once again, please repeat Sir, about how did how did 64 how did you get 64 sir? 64 Okay. 64 कहाँ गया सर? हाँ, अभी बताता हूँ फिर से। देखिए समझिए, ध्यान से समझिए आप लोग। हमेशा टाइम से नहीं आएंगे सब लोग, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है। One second. ये टेबल आपको दिख रहा है? जितने लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए बोल रहा हूं मैं। टेबल दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। और अब ए का लिया हमने। ए का हमने 65 बताया था कैसे आया। तो ये देखो, ये रो, ये क्या है? कॉलम है, राइट? कॉलम कॉलम की वैल्यू 4 है। 4 कॉलम का बाइनरी नंबर क्या दिया हुआ है? 100 100। और इसका रो नंबर क्या दिया हुआ है? 0001, राइट? 0001। तो कल आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल समझाया था मैंने, याद है? याद बाइनरी टू डेसिमल में हम क्या करते हैं? 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे 128 ऐसे लिख सकते हो, राइट? तो इसको प्लेस करते हैं। 1 के नीचे 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 0 1 ये आया। इसको हमने प्लेस कर दिया। तो किस किस के नीचे 1 आया है? 64 and then 1. It means what? 65. 65. Now it's clear? Yes, sir. Okay. So similarly, we can find all those keys value which is present in your keyboard.
See, there are numbers, there are symbols, there are alphabets, and there are some keys which is special for special purposes, for special uses, right? So you can find out each and everything. Now I'll go for the next topic. These are basically reserved for some specific purposes, because computer cannot understand your own language. Whatever you are writing, the computer cannot understand. Computer needs it to convert into the binary format, and that's the reason we need BCD number, or ASCII number is one of the most important, right? Now, Yes, sir. next part is instructions or concept of instruction. What is an instruction? जो ऑर्डर देते हो. हाँ, बिल्कुल ऑर्डर देते हैं. बहुत बढ़िया आपने बताया. बट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो ऑर्डर देते हैं. और कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन क्या देता है? जो भी हम इनपुट देते हैं, राइट? Yes. Or all inputs can be considered by system as an instruction, and as per the instructions, computer can perform the task if the computer has the translation of that instruction. अगर उस इंस्ट्रक्शन का ट्रांसलेशन है, उस इंस्ट्रक्शन का लाइब्रेरी है सिस्टम के अंदर, तब तो वो ट्रांसलेट करके दे देगा. लेकिन अगर उस इंस्ट्रक्शन का लाइब्रेरी नहीं है, तो उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके वो रिजल्ट नहीं देगा. समझ में आ गया? समझ गए. अब नेक्स्ट पार्ट है इंस्ट्रक्शन के अपने फॉर्मेट होते हैं. इंस्ट्रक्शंस हैज देयर आल्सो कोड्स which is reserved in the system, and the reserved codes are: for addition we have 000, it means 1 0. For subtraction we have 1. For multiplication we have 2, and the binary number of these numbers are this one. For division we have 3. For modulus division we have 4. For complement we have 5. For bitwise AND we have 6, and for bitwise OR we have 7. Means these are the key, these are the words, these are the codes is reserved for the following operations. It means if you are writing plus in the computer system, it is going to convert it after translation is 000 or 0 in decimal, 000 in octal, and this is under decimal number, right? And this operational code is known as opcode. Opcode means operational code through which we can do any kinds of operation. Yes, Aman, you wanted to ask something. Okay, good. So we have see how it's work and what are the uses of that one. The use of this one is for making any type of calculations and any type of operation. But how can we represent? Suppose we have 93 plus 25. It means what? First of This is all, the input. yes, please. Sorry. This is the input we going to give to the computer. Yeah, of course. So first we'll convert 93 into binary number system, 25 in binary number system, and we'll write 000 in between, right? Yes. And that will work in computer system. If you are writing this one, computer will computer will convert it into the binary number system in such a way what we have discussed. Now, elements of CPU and their role. We have already discussed all these points in our last class about what are the element of CPU and what are the role. I have already
talked about ALU. We have already talked about CU. We have already talked about register. So anybody who can tell me about ALU? What is ALU basically? Arithmetic logic unit. Yes, and what is the purpose of this? To perform arithmetic and logical operations. That's great. Good. All arithmetical and logical operations. And what is the use of CU? CU is for control unit, sir. Yeah. And what is the task of CU? To control the tasks happening. To control the task or to control all the entire component of the computer system. Yes, sir. And what is the use of register? Register, it controls the electricity, sir. Okay, you are saying the register is used to control the electricity, right? Yes. Okay, anybody else? To store the data, the input given and the output temporarily. Okay. Devopriya, right? Yes, sir. Okay, so register. First of all, we should understand about register. Register is what? Register is a memory system. Register and how it derived. See, the smallest unit of memory is flip-flop. Flip-flop is the smallest unit of memory system. That can be store only one bit of information. Okay. And after combining flip-flop, means combination of flip-flop is a register. Register is the combination of flip-flop as per the requirement and as per the memory capacity we required. सबसे छोटा यूनिट होता है फ्लिप फ्लॉप. तो फ्लिप फ्लॉप को हम कहते हैं बाइनरी सेल, जो एक एक बीट का इंफॉर्मेशन रखता है. और फर्दर मोर जब फ्लिप फ्लॉप का काम खत्म होता है, फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिलाकर एक रजिस्टर बनाया जाता है और बहुत सारे रजिस्टर को मिलाकर के मेमोरी बनाया जाता है. तो फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर्स आर द बेसिक मेमोरी सिस्टम. क्लियर हुआ? मैंने ये भी कल बताया था. जी बच्चे बोलिए. Yes, sir. और मैंने कल ये भी बताया था, आप लोगों को याद होगा तो, कि रजिस्टर बहुत सारे तरह के होते हैं, राइट? जिसको हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे. मैंने ये भी बोला था आप लोगों को. Yes, sir. You said accumulator was a name for register. Yes, accumulator was one of that. Flag register, accumulator register, आपका parity register, बहुत तरह के registers होते हैं. And we'll learn about this one in second chapter. So we already knows about elements of computer system. So I'm skipping the topic and going forward. Next point is, so in second unit we have only these points, and the most important topic from the second unit is number system. It will give you 5 to 10 marks in the examination. Be careful about that. And next point is, you can say only CPU and their role. It may be asked from the computer in your examination. So 2 questions is important from this unit. Okay, it's clear? Yes. How many questions I have given you in first unit as an important? 3. In first unit, I have given you 4 questions as important for examination, and in second unit, I have given 2 questions, that is conversion of number system and CPU and their role. Right? Till now, we have declared 6 questions, which is important for your examination. Now I'll go for the third unit.
Just a minute. Okay. So in third unit, we'll find out. In third unit, we have memory type and storage devices, right? Third unit is completely dependent on what? Memory system, right? What is memory? Anybody who can tell me about memory system? Sir, memory is an electronic holding place. Okay, electronic holding place, which can hold information for future references, right? Yes, sir. Dharmendra. Yeah. So memory, as per Dharmendra, memory is the electronic holding place, means those device which is basically used to hold the information stored by user, written by user for the further references of the user is known as memory. Yeah. Right? Memory can be further divided into, basically we can say further divided into two parts, that is volatile memory and non-volatile memory, right? Dharmendra? Yes. Yes, sir. And what is volatile memory? Volatile memory, when we switch off our computer, it lost their data. Yes. Volatile memories are those memory which holds the information as per the temporary basis. While the system is going to be off, it is lost. While non-volatile memories are those memory systems which can hold the information for the life till you are not deleting from your system. Right? Yes, sir. Volatile memories and non-volatile memories. Okay. Next point. I'm just opening the blog. It will be better than presentation. Oh, 1 second. Give me a second. Oh, sorry. First semester. Third unit, right? This is your block, and the unit is this one. So you'll learn. We'll learn about memory system. So memory, what is memory is done, and then we have learned about the volatile and non-volatile memory. Now we have a time to, basically the time to take attendance. Okay, but for 1 minute, if you all can open your camera, that will be better, if possible. If not possible, no issue. I want to take an screenshot as an attendance of yours. It is very nice to see you all by face. It is very important to know each other by face too. That's why I have opened my camera. And basically, the picture or image of yours can represent the thought process as well as presence, so that I'm giving you best or not. That's why I have taken the attendance. No issue. We'll start now. If you want to do, you can off your camera. So here we were on memory system. So memory system, see, if we have a stored data, see, we have memory and we have the stored data. This is our memory system.
and we have stored data. How data comes up to the screen? See, if we have stored data in our HDD, means hard disk drive, and I need to access the data to read it out, just first of all, we'll go on the folder and file and we'll click on it. After clicking, it will take a time. And that time is known as access time. समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जब हम कैमरा ओपन करते, सॉरी, जब हम डेटा ओपन करते हैं तो डेटा ओपन करने में क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है. एंड दैट टाइम फॉर द फाइल इज नोन एज एक्सेस टाइम, राइट? अब एक्सेस टाइम की क्यों जरूरत है भाई? तो हमने अभी क्या बताया कि system has stored your all information in the binary coded system and you wanted to see it in digital format. So it requires basically some time to translate it out, and for that it is taking time, and that time is known as access time. So whatever file you have stored, on opening of that file, it takes some time, and that is known as access time. See, access time is given above. Next time, storage capacity. For memory system, we have 3 points. Storage capacity is what? Suppose we have a hard drive of 500 GB. Then how many data it can store? अगर हमारा ड्राइव ही 500 GB का है तो कितना डेटा स्टोर करेगा ये? Sir, 500 GB or less. Good. Probably 500 GB, or it may be less. Why less? आप Due to देखते हैं encoding. हाँ, बोलिए नमन, बोलिए. सर वो सिस्टम टाइप्स होते हैं, जैसे NTFS वाला होता है जो विंडोज में चलता है, उसमें कम डाटा स्टोर होता है, जबकि XFAT वाले में ज्यादा डाटा स्टोर हो पाता है. गुड, अभी अच्छी बात है. ये अच्छा लगता है ना, आप लोग बताते हो तो और अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में. और बहुत बढ़िया बोलते हो आप लोग तो एनर्जी मिलती है टीचर को, लेकिन अब ज्यादा भी बोलने लगते हैं तो भी खराब लगती है. बहुत अच्छा. तो देखो क्या होता है सिस्टम में, जब हम स्टोर करते हैं डेटा, तो अभी आप लोगों ने, अच्छा कितने लोग इसमें से साइंस के स्टूडेंट हैं? हैंड रेज करेंगे आप लोग? अच्छी बात है. जितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं वो आसानी से समझ जाएंगे. अगर हमारे पास एक 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो हमें वो मैक्सिमम पावर सप्लाई जो देता है 1.3 टू 1.49 ये देता है ना. इसलिए देता है, 5 भी मान लो कोई बात नहीं है. क्यों कम देता है? बिकॉज, अच्छा क्यों देता है भाई? क्योंकि उसको सोर्स से सप्लाई तक आने में कुछ एनर्जी लॉस करना पड़ता है. कुछ क्या करना पड़ता है? कुछ उसका एनर्जी लॉस हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी सिस्टम का क्या होता है? मेमोरी को पार्टीशन बनाने में भी कुछ मेमोरी लॉस करना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई द सिस्टम कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी और लेस देन द एक्चुअल कैपेसिटी रिजर्व फॉर द ड्राइव. अगर 500 GB का है तो 500 GB में आपने पार्टीशंस भी बनाए हैं, तो उस पार्टीशंस ने भी कुछ स्पेसेस लिया होगा. इस वजह से वो क्या होता है, पार्टीशन के स्पेसेस की वजह से वो भी कुछ टाइम, कुछ स्पेस
कम कर देता है। और आप देखते हैं कि अगर आपके पास पेन ड्राइव भी है तो पेन ड्राइव भी आपने 32 GB का पेन ड्राइव लिया है तो हो सकता है वो 31 GB या 31.5 GB तक का ही डेटा रखे और 32 GB का डेटा न रखे। और कोई किसी पेन ड्राइव में 32 GB दिखाएगा लेकिन एक्चुअल 33 GB डेटा नहीं उसमें हो पाएगा, क्योंकि दैट इज द फॉल्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये हो गया स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट है क्या, एवरी मेमोरी सिस्टम हैज 3 पॉइंट्स, दैट इज द एक्सेस टाइम। एवरी मेमोरी सिस्टम नीड्स सम एक्सेस टाइम टू रिप्रेजेंट डेटा in front of you. It has a storage capacity. It can store the maximum unit of information and cost per bit of a storage. What is basically cost per bit of storage? क्या कोई मेमोरी सिस्टम से कॉस्ट लेता है? इसका कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। क्या मेमोरी सिस्टम कॉस्टिंग करता है हमसे? Yes, sir. किस तरह से कॉस्टिंग करता है? किस तरह से करता है बताइए? Paisa. To buy, is that money needed cost? I'm not getting you, Devapriya, properly. The money needed to buy, are we talking about the cost money? Cost, yes, a cost per bit of a storage. I'm not talking about the talking about you are going to purchase from market. The point is cost per bit of a storage. I don't know, sir. Okay, anyone? Dharmender? That is the question I'm also expecting from you, sir. Okay, so I am here. Basically, if you wanted to, if you are learning about storage and we have a storage capacity in our system and we are using the system, we are not paying any cost at the use. But before use, we have paid something. It's basically saying if you are taking a huge capacity memory system, it you have to pay lesser than the minimum capacity of the memory system. But in computer, if you have already installed your memory, then the cost per bit means access time. After installation of memory system in the computer system, cost is directly proportional to the time required by system to access your data. देखो, जब तक हमने मार्केट से कॉस्ट दो जगह कॉस्ट की बात की जाती है। एक कब, जब हम मार्केट से परचेज करने जा रहे हैं सिस्टम को, मेमोरी सिस्टम को। मान लो 500 1 टीबी का हमने लिया, क्या एक हार्ड ड्राइव लिया 4000 रुपीज में, तो ये हमारा कॉस्टिंग हो गया 4000 रुपीज फॉर 1 टीबी। लेकिन जब हमने इसको सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया तो पर बिट की बात करें तो ये दैट इज द एक्सेस टाइम। उसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट। क्योंकि हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, टाइम इज कॉस्ट कहते हैं ना। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस अमन, जो वही सर आप बोलिए। देखिए आप लोगों के सारे, Does that mean if we buy a higher cost drive, then it takes long time to access the data? No, it's depend on which type of memory you are purchasing. See, if you are purchasing, there are 2 types of hard drive. If you are purchasing hard drive or SSD hard drive, right? Okay. It means what? SSD is 10 times
faster And than HDD, right? Yes. Yes, sir. So it's depend on the technology, the memory technology which you are using. It's not कि आपने ज्यादा मेमोरी वाला खरीदा तो ज्यादा टाइम लेगा, नहीं, डिपेंड करता है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर. अगर एचडीडी है, नॉर्मल सिंपल एचडीडी आपने लिया है तो वो आपका टाइम ज्यादा लेगा. अगर आपने एसएसडी लिया है तो टाइम कम लेगा. तो कॉस्ट पर बिट का मतलब ही हो गया कि एक्सेस टाइम एज वेल एज द एक्चुअल कॉस्ट विच वी हैव परचेज्ड. नो इशू. नेक्स्ट है क्या है, मेमोरी सिस्टम और उसके पर्पसेस. क्या होते हैं पर्पसेस? मेमोरी सिस्टम क्या है? अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो सबसे पहला बात होता है प्रोसेसर और इंटरनल सीपीयू मेमोरी. हम कह सकते हैं सीपीयू मेमोरीज और प्रोसेसर्स मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सुलरी मेमोरी. अब सबसे पहले विल टॉक अबाउट द प्रोसेसर्स मेमोरी. डू यू नो अबाउट प्रोसेसर? How many of Yes. you? What is processor? Anybody can The explain? CPU. The CPU that we just talked about, ALU and CU. Okay, CPU. Good. And that part is C 2.4 GHz, gigahertz, right? It comes under the gigahertz. The capacity of this one 2.8, 3.0. देखे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. इसकी कैपेसिटी होती है. And that is basically CPU is the internal memory which is stored on which is installed on the motherboard system, and it directly interacts with each and every component of the system. Without CPU it is not possible to work in out. क्योंकि देखो इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट हमने पढ़ा ना, इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट है, इसी के अंदर एएलयू है. तो बिना कंट्रोल यूनिट और एएलयू के हम काम कर सकते हैं क्या सिस्टम में? No, sir. Yes, So sir. it is one of the most important, and it is a high speed memory. Means it is the basic high speed memory of the system. And then comes on the main memory. We have basically three types of memory system. That is internal or CPU memory. Second one is primary memory, where RAM and ROM is there, right? And RAM is further divided into SDRAM, DRAM, कह सकते हो ना DDR RAM. जितने लोग अगर हार्डवेयर के विषय में थोड़ा भी जानते होंगे वो क्या कह देखते हो, DDR, राइट? Yes, DDR sir. means what? Yes, sir. Yes, sir. SD means static. SRAM मतलब static RAM होता है. Yes, sir. स्टैटिक डायनेमिक रैम Yes, sir. और डायनेमिक रैम. तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? डायनेमिक रैम, राइट? DDR3, DDR4 आप सुन रहे होंगे ना मार्केट में कि हमारा सिस्टम में DDR4 है, हमारे सिस्टम में DDR3 है. बट द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो देयर. इसका भी रैम, अगर आपने रैम ले लिया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लोग कहते हैं मेरे पास रैम 16 GB का है, लेकिन 60 GB के साथ 16 GB क्या हो गया? उसका स्टोरेज हो गया, लेकिन इसकी स्पीड भी होती है. आप रैम पे देखोगे 133 हर्ज ऐसे करके उसका लिखा रहता है. तो बेसिकली दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑल्सो dependent on the speed of the RAM, and basically speed of the RAM is directly related to the technology we are using in the system. और motherboard, based on the motherboard, कौन सा motherboard किसको सपोर्ट करता है. आपने 16 GB का रैम लगा दिया लेकिन आपका सिस्टम स्लो चल रहा है. It means what? The speed of the specific RAM is not as required as
well as for the system. आपके सिस्टम के लिए जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी वो नहीं मीट कर रहा है, इस वजह से वो आपका सिस्टम स्लो चल रहा है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी और एक्सुलरी मेमोरी। हाँ, रोम नहीं बताया आप लोगों को। रोम में क्या होता है? EROM, erasable read only memory, EPROM, erasable programmable read only memory, और EEPROM, PROM भी कह सकते हो। तो ROM can be further divided into 4 parts, that is the programmable read only memory, erasable programmable read only memory is also, and electronically erasable programmable read only memory. अब मान लो आप लोग CD यूज करते होते हैं ना पहले, अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। CD में क्या होते हैं? ट्रैक्स एंड सेक्टर होते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. तो CD में CD-ROM है, रीड ओनली मेमोरी है। तो एक CD आता है जो एक बार आपके पास राइट एक बार आपने कर लिया और फिर दोबारा उसमें कुछ नहीं हो सकता, जो राइट कर लिया। ठीक है। तो PROM होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक CD आता है कि एक बार उसमें रीड कर लिया, दूसरी बार उसको इरेज करके रीड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं EPROM और EROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप इसको रीड करेंगे, राइट करेंगे, रीड करेंगे, डिलीट करेंगे, सब कुछ सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो these are 2 types of basically main memory है। Under main memory we can learn about ROM, PROM, sorry, RAM or ROM. RAM can be further divided into SRAM and DRAM, and ROM can be further divided into PROM, EPROM or EEPROM. Now secondary memory, under secondary memory, all those memory which can be plugged and play in the system, that comes under the secondary memory or auxiliary memory system. वो सारे मेमोरी जिनको हम सिस्टम से बाहर भी लेकर जा सकते हैं, वो सारे के सारे आते हैं हमारे किसके अंदर? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जिसमें हम डेटा स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। वो सारे आते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और ये सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एंड बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग। So the latest memory is that one EEPROM memory, right, sir? EEPROM, erasable programmable read only memory. That is the part of ROM only. No, I'm This is asking not about latest electronically erasable programmable read only memory. See, this one is very, very important for your examination. Memory hierarchy. It's very important for your examination. You can mark it out. What is memory hierarchy? If I'm talking about hierarchy, anybody who can explain about hierarchy? What is hierarchy basically? Hierarchy क्या होता है, कोई बताएगा? Hierarchy is when we classify things into different levels based on some criteria. Absolutely right. When based on criteria, whenever we are dividing, we are explaining about the levels of any system, that comes under the hierarchy. Similarly, we have memory hierarchy because we have also developed the memory system from base to, means lower level to, means bottom to top or top to bottom, whatever. So
we can see two figures over here. First of all, I'll tell about the second one. In last statement, I have said register is one of the smallest memory system, right? याद है आप लोगों को? मैंने कहा था कि रजिस्टर सबसे छोटा मेमोरी सिस्टम होता है, उससे छोटा फ्लिप फ्लॉप होता है, राइट? तो रजिस्टर, आफ्टर रजिस्टर we can talk about the cache memory. Cache memory is what? That is the basically temporary memory. Now it goes to the main memory. After main memory, we can talk about the magnetic disk and virtual memories. And then we can go for the magnetic tape and remote access memory. This is the basic hierarchy of the system, that is smallest to largest one. We can also see this figure. First, CPU memory is there. Register is directly proportional to the CPU memories. After CPU memories, we'll go for the cache memory, because CPU memory, it basically cache memory, the definition for the cache memory, you can say it, the memory which works between the main memory and CPU memory is known as the cache memory. Why it is required? Because CPU memory is the fastest one, and primary memory can interact with them with the help of an existing an extra space, and that is the cache memory. And after primary memory, we can go for the secondary memory. See, if you are using any system, you are directly interacting with the CPU memory, and based on CPU memory, primary memory and CPU memory is generating a space on the cache memory, and then it will goes to the secondary memory whenever we are going to save it out. Whenever we are saving any data, on the time of saving, it is taking some time, and that time is known as saving time. See, अगर बहुत बड़ी फाइल आप सेव करते हो तो थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम लेता है और उसके बाद वो सेव होता है. एंड दैट्स द रीजन कि प्राइमरी मेमोरी से कैसे वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के होल्ड होता है अपना मेमोरी. क्योंकि अगर मान लो वी हैव a 500 GB of hard drive and 100 GB is already full, and we are saving 10 GB of data. The storage is 1 to 100 is full, 10 GB, then it will partition your system in 10 GB and generate the memory location is as per the 110, 110, and it will fix it out, and that is known as that's why it is taking some time from conversion to primary to secondary memory. तो हम सिंपल भाषा में कहें कि अगर मेमोरी हायरार्की की बात करें तो मेमोरी हायरार्की, द स्मॉलेस्ट पार्ट मींस सीपीयू. First of all, we will interact with the CPU. After CPU, it will generate a cache memory. After cache memory, we'll go for the main memory system, and the main memory system will go for the secondary storage, where the user can store the physically data in it. Is it right? Clear हो गया आप लोगों को इसमें मेमोरी सिस्टम में हायरार्की में? It's clear. हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों को मैं बताते जाता हूं कि आप लोग को जो मैं पढ़ाते जाता हूं, जिस को मेन टॉपिक में बताते जा रहा हूं, उसको आप लोग नोट डाउन करके अपना एक नोट्स बना लें. दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बाद में एग्जामिनेशन में आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेन पॉइंट तो पढ़ लिया आपने, उन पर ज्यादा जोर दो. पूरा बुक रीड कर लो, लेकिन उस पर ज्यादा अपना प्रिसाइज करने की जरूरत है. जो पॉइंट मैंने मेन बता दिया आपको. अब हमने बताया था, we have explained about the accessing. Access का मतलब क्या होता है? गेट करना, राइट? अगर हमने स्टोर कर दिया है इंफॉर्मेशन तो उसको गेट जब करते हैं तो उसे एक्सेस करते हैं.
तो एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस में क्या होता है भाई, बोलिए। मतलब सेव्ड है हमारा डेटा, उस डेटा को हमें प्रेजेंट कराना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस करना। एक्सेस के भी बहुत तरह के पार्ट होते हैं, जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है, सपोज वी हैव 4 partition in your hard drive. You have stored data A over here, B over here, C and D. And if you are going to read the data or find the data after checking one by one, it is known as sequential access. एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से आप क्या करते हैं, मोबाइल फोन में आप क्या करते हैं, फोन करते हैं किसी को। फोन करने से पहले क्या करते हैं, आप डेटा सेव करते हैं, उनका नाम सेव करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए आप, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। बैठिएगा। हाँ जी, तो एक्सेस टाइम, एक्सेस में मैंने क्या बताया, सीक्वेंशियल एक्सेस। अगर आपको फोन करना है तो आप क्या करते हैं, आपको फोन करना है मोहित को, तो आप क्या करते हैं, अपने फोन की डायरेक्टरी में जाते हैं और चेक करते हैं एक एक करके कौन सा कहाँ पे मोहित का नंबर है और लगाते हैं। जब एक एक करके चेक करते हैं तो आपका क्या हो गया, वो सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। मतलब डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मोहित को फोन करना, जाके आप एम टाइप करते हैं, एम वाला सारा आ जाता है, एम से स्टार्ट वाला। एम ओ करते हैं, एम ओ से जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाती है। एम ओ एच करते हैं तो एम ओ एच से सारी लिस्टिंग हो जाती है। तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सेसिंग। तो किसी भी मेमोरी सिस्टम से हमें डेटा एक्सेस करना है तो एक्सेस करने की 2 मेथोडोलॉजी होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी होती हैं, Sequential and direct. और डायरेक्ट। गुड, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट समझ में आ गया बच्चे लोग आपको? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सेमीकंडक्टर और मेन मेमोरी आप लोग पढ़ेंगे इसको, जहां नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। जो मैंने आप लोगों को मेमोरी के विषय में बताया था ना कि रैम 2 तरह के होते हैं, राइट, और रोम इसमें 2 ही तरह का दिया हुआ है आपके ब्लॉक में। मैंने पी रोम, ईपी रोम भी बताया था और ईईपी रोम भी बताया था, याद है? ठीक है, यस सर। तो ये भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। रैम का ये फिगर दिया हुआ है और समझाया हुआ है, ये सारे चिप हैं जो चिप लगे हुए हैं। आजकल अब रैम में इतने चिप नहीं आते, इसको शॉर्ट कर दिया गया है, 4 चिप और 2 चिप दे दिए जाते हैं। इसको एक बार गो थ्रू करेंगे आप लोग, जहां डाउट होगा आप लोग पूछेंगे मेरे से। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाता है। हाँ, देखो मैंने आपको बताया था एक चीज क्या कि ये हमारा सीडी है। तो सीडी में क्या होता है, ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, राइट। सीडी में देखोगे आप गौर से तो ऐसे चलता हुआ दिखेगा, राइट। Yes, sir. सीडी या डीवीडी कोई होगा। तो इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ये हमारा ट्रैक हो गया और इसके बीच बीच में पार्ट में डिफाइन होते हैं सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किसी सीडी की कैपेसिटी क्या होगी, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है कि अ 2.5 इंच डायमीटर डिस्क पैक ऑफ 6 प्लेट्स, 6 प्लेट्स हैं, यानी 6 प्लेट का मतलब क्या होगा, 12 रिकॉर्डिंग सरफेसेस हो गई। 256 सेक्टर पर ट्रैक, एक ट्रैक में कितने सेक्टर है जी, 256। 5250 ट्रैक पर सरफेस एंड 512 बाइट पर सेक्टर। तो उसका कैपेसिटी क्या होगा और डेंसिटी क्या होगा। तो इसके लिए कैपेसिटी और डेंसिटी का फॉर्मूला हमें समझना जरूरी है। एंड फॉर दैट विल गो हियर। सपोज अ HDD or disk pack having the plates M plates को डिफाइन करते हैं किससे, M से। तो M प्लेट होगा तो सरफेस एरिया कितना होता है, 2n होता है। यानी कि टोटल जितना प्लेट होगा उतना उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया, राइट। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, T डिनोट करते हैं ट्रैक पर सेक्टर, P हो गया सेक्टर पर ट्रैक, S हो गया सेक्टर बाइट पर सेक्टर, एंड पाई इज व्हाट, बिकॉज इट इज इन सर्कुलर पाथ। सो हम जब भी बात करेंगे डायमीटर और रेडियस का, तो वहां पर हमें जरूरी होगा किस चीज की वैल्यू, पाई की वैल्यू जरूरी होगी। तो हमने ये डिफाइन करा। सो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्प्ले डिस्क इज M into T into P into S। ये याद रखना है आपको। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, S into P by pi into D, राइट। तो अब हम सिंपल यहां से निकाल देंगे, हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा हमारा, यहां पर देखिए 2.5 इंच डायमीटर दिया है, फिर डायमीटर दिया हुआ है, 6 प्लेट्स दिया हुआ है, तो M इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो M इज इक्वल सॉरी P इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो M इज इक्वल टू 2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 सरफेस हो जाएगा। उसके बाद से 256 सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर पर ट्रैक P हो गया हमारे पास। एक एक चीज हम देखेंगे। और फिर कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, कैपेसिटी निकल जाएगा, और डेंसिटी के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, डेंसिटी निकल जाएगा। डेंसिटी एंड कैपेसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। जी अभय कैसे हैं आप, अभी आ रहे हैं अभय। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं चौधरी जी। नहीं सर, अभी कुछ नहीं सर। अभय आपको पता नहीं था कि बच्चे अभी आए हैं, ज्वाइन किए हो अभी? नहीं सर, पता नहीं चल पाया था क्योंकि अभी काम कर रहे थे, काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, इस वजह से पता नहीं चल पाया। अभी मेल चेक किए तो पता चला। ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको जो भी डाउट होगा पूछ लेना, पढ़ करके डाउट रखना, डाउट पूछ लेना। हाँ इसमें 2 चीजें और है, डिस्क केस की बात हो गई, एक्सेस टाइम की बात हो गई, अब सिक टाइम। अब मान लो 2 टाइम होती है, लेटेंसी टाइम और सिक टाइम। ये सीडी ड्राइव है, सीडी है। अच्छा आप लोग सीडी प्लेयर से कभी गाना सुने हो कि नहीं सुने हो? आप लोग क्या करते थे, सीडी प्लेयर लगाकर गाने सुनते थे, आज भी सुनते हैं लोग? यस सर। आज तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी। तो उसमें क्या होता है, एक सॉन्ग बजने के बाद जब दूसरा सॉन्ग बजता है तो थोड़ा बहुत टाइम लेता है कि नहीं लेता है? यस सर। क्यों लेता है भाई? अब सवाल ये है, उसको समझना है हम लोगों को, क्यों लेता है, कोई बताएगा? जैसे मान लो ये हमारा, हमने क्या बताया, ये ट्रैक होता है और सेक्टर होता है, राइट। तो मान लो पहला गाना हमारा यहां से यहां तक था, तो अब दूसरा गाना जब स्टार्ट होगा तो इसको रीड कर लिया। अब इसके रीड करने के लिए, इस हेड पे जाने के लिए एक छोटा सा टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं क्या, मूविंग टाइम।
तो यही होता है सिक टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड ऑन ए स्पेसिफिक ट्रैक is the sick time. Sick time is what? The time which is required to move from one specific head to another is known as sick time. Where latency time भी नीचे दिया है, the time required to bring the needed data under the read write head. जो डेटा को लेकर के आने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम. तो लेटेंसी टाइम और सिक टाइम, it is also most important whenever we are continuously working in a memory और RAM और ROM कर सकते हो. और एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम. अब मान लो कि यहां तक हमारा एक सॉन्ग बज गया था, दूसरा सॉन्ग हमें बजाना था ये, तो इस सॉन्ग को मूव करने के बाद इसको पूरे को टेम्पोररी मेमोरी में लेने में जो टाइम लगा, हेड को यहां तक मूव करने में जो टाइम लगा, वो हो गया सिक टाइम. और लेटेंसी टाइम मतलब रीड और राइट हेड को यहां तक लाने में जो टाइम लगा, इसके बाद ही ना ये गाना बजेगा. तो इसलिए लेटेंसी टाइम और सिक टाइम दोनों को मिला करके जो टाइम होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्सेस टाइम. अच्छा बताइए, पेन ड्राइव किस किस ने नहीं देखा है? पेन ड्राइव कौन सा मेमोरी होता है? Which types of memory is पेन ड्राइव? सेकेंडरी मेमोरी. आप लोग सारे लोग यूज किए हैं पेन ड्राइव? Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसको मैं ना पढ़ाऊं ना, फिर इसको आप लोग पढ़ लेंगे. मैग्नेटिक टेप, ये भी एक क्या होता है, सीक्वेंशियल स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 GB से 150 GB तक होती है. और जिसका स्टोरेज कैपेसिटी निकालने के लिए हम अगर बात करें तो ये फॉर्मूला निकलता है हमारे पास, स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनटू लेंथ. जितना बड़ा लेंथ होगा उतना. अब मैग्नेटिक टेप का आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? सर ये कैसेट है क्या, जो वो पहले टेप रिकॉर्डर में चलती थी? बिल्कुल 100% राइट बोला आपने. वही कैसेट है जिसमें एक ब्लैक कलर की पट्टी चलती थी ना, उसमें जैसे आप लोग देखे होंगे तो ऐसा कैसेट आता था जिसमें 2 मूव्स होते थे, राइट. यहाँ पर ये जितने इसके प्ले ये थे, टेप लपेटे रहते थे, ये इधर घूम के जाता था, इधर घूमता था, गाने बजते थे, राइट. यस सर. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 GB से लेकर के 150 GB तक होती है, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है. आज के डेट में भी यूज होता है. आप सिनेमा घरों में जो जाते हो, रील चलते हैं उसमें, राइट. वो रील बनती है मैग्नेटिक टेप से. और इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला बता दिया मैंने, स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ द डेटा. आप पढ़ सकते हैं, इफ ए टेप लेंथ इज 3400 feet long and has a data recording density of इतना, its storage capacity will be इतना and इतना. तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट पॉइंट. Why is pen drive called flash memory? What is the meaning of that? Can you please ask once again? There it is written that pen drive is a flash memory. So flash meaning? Okay, good question. कोई बताएगा? She is asking why pen drive is known as flash memory. Anybody who has knowledge about this one? Very good question. सर मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, पर मैं ट्राई कर. एकदम देखो, हम लोग डिस्कस के लिए है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो. बोलिए.
सर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जैसे टेप होती है तो उसके अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, तो एक के बाद ही दूसरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में फ्लैश मेमोरी ऐसे होता होगा कि हम कहीं पे भी रखा हुआ डाटा एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे पेन ड्राइव में हम जब लगाते हैं तो हमें जो फाइल कॉपी करनी होती है हम डायरेक्टली उस पर जाते हैं और उसको एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन ये चीज अगर हमें सीडी में करनी हो या फिर अगर हमें इसी चीज को टेप में करना हो तो शायद मुश्किल होता है, तो इसलिए शायद पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव बोलते हो। कुछ हद तक ठीक बताया आपने, कुछ हद तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बताया आपने। और कोई जानते हो मैं आप लोगों से क्यों बात करता हूं, क्यों पूछता हूं? क्योंकि मैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूं। ये बनेगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी बात है। तो पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव की फंक्शनलिटी कैसे चलती है, सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ द पेन ड्राइव वर्क्स, राइट। पेन ड्राइव के लिए क्या होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, राइट। यस सर। Yes, sir. यूएसबी पोर्ट में आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ होता है, देखते हैं आप लोग। यस सर, पेन ड्राइव की स्टोरेज आती है। पेन ड्राइव क्या करता है, पेन ड्राइव पहले एक्सेस होता है, पेन ड्राइव पहले एक्सेस होता है और आपके सिस्टम में आता है रेडी टू यूज। आपके टास्क बार में नीचे एक प्रोसेस चलता है, भले वो 1 सेकेंड के लिए चले, 2 सेकेंड के लिए चले, देखा है आप लोगों ने, Yes, sir. और वहां लिखा आता है रेडी टू यूज। और जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाते हैं और सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या चेक करने लगता है कि कोई चीज इनपुट मिला है, तो उस इनपुट को समझने के लिए, उस इनपुट को रीड आउट करने के लिए एक आप देख सकते हो अपने सिस्टम में एक लाइट फ्लैश होती है, देखते हैं आप लोग, देखे हैं कभी? देखो आप जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं ना, वहां पर एक लाइट ब्लिंक होने लगती है, और वो लाइट क्या करती है, लाइट क्यों ब्लिंक होती है, क्योंकि ये जैसे ही लगता है, इन होता है सिस्टम, तो ये इनपुट उसको मिल जाता है कि डिवाइस हैज बीन इंटरेक्टेड एंड द सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर एक्टिव फॉर चेकिंग acceptance of what, acceptance of, बोलो, Pen drive. न्यू हार्डवेयर ड्राइव, नए हार्डवेयर के लिए क्या एक्सेप्टेंस के लिए वो चलता है, और इसी वजह से, और उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट वो फ्लैश करने लगता है, इसलिए से फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, प्लग एंड प्ले ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। सिंपल, मैंने पूरा स्टोरी इसका समझाया इसीलिए आपको। Why pen drive is known as flash drive? Because it flashes, it works on the flashing, it works on the system to interact the new hardware drive into the system and work on it. तो सिंपल इसीलिए इसको फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल मेमोरीज। ऑप्टिकल मेमोरीज में आपका सीडी रोम है, सीडी रोम, अच्छा सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताए Yes. जी? डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बताया। और ये सारे मेमोरी किस नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्टिकल मेमोरीज। अब ये ऑप्टिकल मेमोरीज क्यों कहा जाता है, आंसर आप लोग जानते हो, ऑप्टिकल मेमोरीज क्यों कहा जाता है, कौन बताएगा? Because बोलिए। optical light beam, like a laser, is used to read the data. बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, क्योंकि ये लेंसेस के अकॉर्डिंग, इसको लेंसेस री करने के लिए यूज की जाती हैं, और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हमें ऑप्टिकल डिवाइसेस कहा जाता है, ऑप्टिकल मेमोरीज कहा जाता है। ऑप्टिकल मेमोरीज में आपका सीडी, डीवीडी,
देखो आ गया ना यहाँ पर, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क हो गया, डीवीडी रोम, डीवीडी राइटर, रीडेबल रोम, राइटेबल रोम, जो भी है डीवीडी और सीडी। तो ये डीवीडी एंड सीडी आई एम होल्डिंग फॉर यू ऑल। आप लोग खुद पढ़ेंगे इसको, जहां दिक्कत होगी आप लोग पूछेंगे मेरे से, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। मेमोरी हायरार्की एंड देयर नीड्स। मेमोरी हायरार्की मैंने बोला था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वही चीजें यहां पर भी दी हुई हैं। देखो सेम चीज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट इसको आप लोगों को रीड करना है। मैंने आपका बुक इसीलिए ओपन किया ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और हमारा 3rd यूनिट भी खत्म हो गया। हम लोग 4th यूनिट पढ़ेंगे। आज का टॉपिक 4th यूनिट में बहुत कम चीजें पढ़नी है हम लोगों को। मतलब मेरे तरफ से बहुत कम चीजों की जरूरत है, आप लोग खुद कर सकते हैं। 4th यूनिट आपका है बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के विषय में। तो वी आर ऑन राइट ट्रैक। जैसे कि हमने बताया था कि 9 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या डिफाइन करा था? वी हैव 9 क्लासेस, आई विल डिवाइड 3 क्लासेस फॉर ईच ब्लॉक, राइट? यही बोला था ना मैंने। और हम लोग Yes, आज सेकेंड क्लास में 4th यूनिट पे आ गए हैं। तो इट मीन्स वी आर ऑन राइट ट्रैक। मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट मैं आप लोगों का लूंगा, उस सब्जेक्ट्स में आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू करा दूंगा मैं विद इन गिवन टाइम फ्रेम। तो अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, माउस, गुड, बहुत बढ़िया, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, डिजिटल कैमरा, बहुत बढ़िया। ग्राफिक। इसमें तो किसी को दिक्कत है? बताओ तो, पूछो, बताओ, बताता हूं मैं। ये भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। मैं आप लोगों को you have to study and ask question about this one. It means only, see, we are on the 4th unit of this block in second class. So it means what? Input devices. What are input devices? What are input devices? Can you explain? Any So instruction the given devices to which are the used computer. that are used to give instruction to the computer. Okay. So simple, we can say those devices which is Used to give instruction to the computer. which is reserved for giving instruction to the computer system, which is used to give instruction to the computer system, and the computer system can understand the input given by the specific device. It means सिंपल भाषा में कहें तो वो सारे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं सिस्टम में, और उस इनपुट को सिस्टम समझ सकता है, समझकर ट्रांसलेशन कर सकता है, और ट्रांसलेशन करने के बाद हमें हमारे रिजल्ट तक पहुंचा सकता है, वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइसेस। एंड दोज डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन गेट आउटपुट on our screen, that is known as output devices. And there are so many input devices and output devices are there, right? So many input devices and output devices are there. What are they? It is, if we are talking about input devices, that is keyboard, mouse, tablet, you have trackball, joystick. कीबोर्ड आप लोग समझते ही हैं, माउस आप लोग समझते हैं, टैबलेट भी समझते हैं, ट्रैक बॉल भी समझते होंगे। ट्रैक बॉल समझते हैं आप लोग? जॉयस्टिक तो सब जानते होंगे। Yes sir, joystick जानते।
क्या होता है जॉयस्टिक? सर वो पहले गेम्स में कंट्रोल करने के लिए होता था ना, जैसे डायरेक्शन वगैरह मोड़ने के लिए। और ट्रेस बॉल सर ट्रैक बॉल आई गेस एक वो था, मतलब जो जॉकीज टाइप के रहते थे ना, जिसको हम आगे पीछे करते थे, मतलब वीडियो गेम में रहता था सर ये। हाँ, वीडियो गेम में ही घुमाने के लिए, पोजीशंस को चेंज करने के लिए यूज करते थे। ठीक, these are the input devices. Similarly, we have some output devices, display devices can say, और output devices. तो output devices में क्या आती है हमारी? मॉनिटर, एलसीडी, टीएफटी, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, राइट? Yes. अब बिफोर जब हम कर रहे हैं बात की, हाँ, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की बात करी हमने, तो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमें क्या जरूरत है? इसको इंटरकनेक्ट करना होता है सिस्टम के साथ, राइट? इफ यू वांटेड टू टॉक अबाउट अ स्पीकर, आप चाहते हो स्पीकर को इंटरकनेक्ट करना, राइट? तो जब एक स्पीकर को इंटरकनेक्ट करने जा रहे हो तो व्हाट यू नीड अ पोर्ट, राइट? पोर्ट, और जिसमें पोर्ट में क्या करोगे? आप प्लग इन करोगे। अब प्लग इन करोगे पोर्ट में, तभी तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके वर्किंग परफॉर्मेंस में लाएगा। तो फॉर ईच टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस we need a port to connect it out, and there are basically two types of port. नहीं, आपके बुक में 4 types of port दिया हुआ है। बेसिक पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेटर, SCSI पोर्ट। अब इसका अगर हम गो थ्रू करें तो देखो, ये पोर्ट होता है हमारा, देखे हो आप लोग अपने सिस्टम में? पुराने सिस्टम में देख पाओगे आप लोग, लैपटॉप वगैरह में तो नहीं मिलेगा, जहां पर हम कुछ ऐसी डिवाइसेस होती थी जिसको हम पैरेलल पोर्ट में ही अटैच कर सकते थे। सीरियल पोर्ट तो आप लोगों ने देखा होगा, ये पोर्ट देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. इसे बीजीए पोर्ट भी कहा जाता है, राइट? यस सर। जिसमें मॉनिटर वगैरह, जिस मॉनिटर के साथ देखते हो आता है, इसको अटैच करते हैं हम लोग। तो ये सीरियल पोर्ट होता है। ये पैरेलल पोर्ट होते हैं जो बड़े पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह में आते थे, जिसे यूज करते थे हम लोग। यूएसबी पोर्ट तो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। SCSI पोर्ट होते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये पोर्ट्स होते हैं। तो पोर्ट्स के विषय में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, एग्जामिनेशन पर्पस से। पोर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंड देन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के विषय में भी पूछ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो गए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है कि what are ports, explain its type and working। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या बन सकता है? व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, या किसी इनपुट डिवाइस के विषय में या आउटपुट डिवाइस के विषय में लिख देगा कि एक्सप्लेन करो, ये शॉर्ट नोट्स लिखो। तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। 8 क्वेश्चंस। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ना, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी बैठ जाए, याद हो जाए, कि पेपर में जाकर दिक्कत ना हो आपको। अब बोलिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के विषय में मेरे को बताइए, क्या समझना है आप लोगों को? क्योंकि आज का चैप्टर, आज का हम लोग टॉपिक यहीं तक रखेंगे, 4th यूनिट तक। ये बायोमेट्रिक रीडर और आयरिश रीडर, these devices are in which category, sir? Yeah, output, right, or input? Input. Reader, that is the reader, na? Barcode reader. Okay. Suppose you are using barcode reader. Yes. What is Also, the functionality of barcode reader? to collect the data. Yes, it through
the barcode reader, we can give input into the system, right? This is exactly. After reading the barcode, the exactly translated output is going to insert into the software. Yes. That's why all these readers are under Input devices. Good. Anything? देखो हमने एक टारगेट बना रखी है कि we are here for 1.5 hours for study, means 1.5 hours for study and 30 minutes for the questioning. If you have any question, not only only for this course, if you wanted to learn, if you wanted to ask anything about the course or a program, you may ask. Tell me if you have any question, otherwise I'll go for the chapter. सर वो मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल्स वो कब जी। तक डिस्पैच होंगे? आप ओएल के स्टूडेंट है ना बच्चे? यस सर। आप ओएल के स्टूडेंट है कि ओडीएल के? पहले ये क्लियर कीजिए। सर ओडीएल सर ओडीएल की तो क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई है, तुम आए गए यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ओडीएल वालों की बुक डिस्पैच हो चुकी होंगी। आप अपने पोस्ट ऑफिस से पता करो, जो भी आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको। वो कभी कभी पोस्टमैन क्या करते हैं ना, आपके घर तक डिलीवर नहीं करते, वहीं रख देते हैं, फिर जब आप जाते हो तो दे देते हैं, अदरवाइज रिटर्न भी हो जाता है। ठीक है, ओएल वालों के लिए कोई बुक नहीं दिया जाएगा। आप अपने एलएमएस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप क्या करेंगे, लॉगिन करके वहीं से बुक डाउनलोड कर लेंगे या देखेंगे, वहीं से पढ़ लेंगे। और दूसरा, ई ज्ञान कोश से जब तक किसी के पास भी, जिसके पास बुक नहीं है, ई ज्ञान कोश पे आकर के अपना कर सकता है, पढ़ सकता है वहां से। So where do we find the recorded videos? जी, Where do we find the recorded videos? we'll share you soon. Okay, sir, thanks. I have basically I have created a group by myself, not for officially, personally. I have a group, WhatsApp group. If you wanted to join, you may join. I'll send it there. Yes, sir. I want to join. Okay, no issue. I'm just giving you the link. If you wanted to join, you may join. Okay, sir. I want to. Okay, I'll give it the last. Okay. Okay, sir. Thank you. So, any question, if you have, you may ask. असाइनमेंट में जी बोलिए। फर्स्ट के सी में कन्वर्जन है नंबर, हाँ हाँ, उसके थर्ड नंबर में है कि स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर मार्क्स 50 एसआई एंड यूनिकोड स्ट्रिंग। ASCII and Unicode, right? यस सर। तो ASCII अभी तो बताया था मैंने, आज टेबल वो दिखाया था, टेबल देके समझाया था ना मैंने आपको। इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझा। स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर देखो, एक मिनट, this is your downloads, assignment, bachelor degree program, BCA, फर्स्ट सेम। यही है आपका क्वेश्चन पेपर। FEG 02, ECO 01 एंड BCS। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? यस सर। कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर मार्क्स 50 टू ASCII एंड यूनिकोड। अब डेटा स्ट्रक्चर, सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, अच्छा लगा। डेटा स्ट्रक्चर की बात कर, एक मिनट,
राइट, तो डी का भी अपना एक होगा एससीआई कोड, ए का भी होगा, टी का भी होगा, ए का भी होगा ना। यस तो इस सबका यूनिकोड, क्वेश्चन सीधा सीधा क्या कर रहा है, अगर आप क्वेश्चन समझो तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रिंग दिस वन मार्क 50। तो स्ट्रिंग कहां से कहां तक हो गया, ये डबल कोट में है, तो जहां से डबल कोट स्टार्ट है और जहां पे खत्म है, ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, एक स्ट्रिंग हुआ। टू ACII एंड यूनिकोड, तो इसको कन्वर्ट कर देना, डी का लिखो, ए का लिखो, टी का लिखो और ए का लिखो, इन सब का क्या लिखोगे, यूनिकोड लिखोगे आप, ACII कोड लिखोगे। ACII कोड कैसे लिखोगे, क्लियर है ना आप? यस सर। उसका पूरा यहां से यहां तक सारे कैरेक्टर का एक साथ में आप बाइनरी फॉर्मेट में लिख दो, ये आपका हो गया आंसर। जिसका जो होता है याद रखना है, कैपिटल डी का क्या होता है, तो ए का 65 होता है, तो बी का 66 होता है, सी का 60 क्या होता है 7, फिर डी का 68 होता है, 68 हो गया, 65 हो गया, उस तरह से टी का, इसका सबका आप वहां से आप डायरेक्ट टेबल से देख सकते हो, टेबल से लिख सकते हो, या आप कन्वर्ट करके लिख लो, यही करना है। और बाकी ये 3 क्वेश्चन तो आसानी से हो गए होंगे आप लोगों के। यस सर। Sir, so this ऐसे question ही will be पेपर में भी asked आएगा in बच्चा। exam. यस, How will we know? We don't have the table. हाउ विल, If the question is asked in the exam to convert to ASCII or Unicode, we don't have the table. So how yeah, do we? of course. So you have to learn about what is the value of a specific number, digits and character. So first, most important things are space, A to Z, A to Z and 0 to 9. अगर इनका सीक्वेंस आप याद कर लेते हो कि क्या होगा, तो यू मे सी 65, 97 इज द स्मॉल ए एंड 0 का देख लो, मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, सीक्वेंस पता होगा और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। Okay, sir. So Unicode also has the same, not same, Yes, but yes, yes. Okay. Yes, you can go through the book, you can see over there. Okay, thank you, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास में? आई एम जस्ट टेकिंग क्वेश्चन एट द एंड। और मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से भी कि आप लोग भी पढ़ करके आएंगे, ताकि मैं उसको, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। इसमें आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब के विषय में दिया हुआ है, तो मैंने टैबलेट, जॉयस्टिक, यही सब दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया, यू हैव टू स्टडी योर ओन। नेक्स्ट जो हमारे क्लासेस होंगी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि सेकेंड ब्लॉक will cover about the programming logic, some of the programming logic, flowchart generation system, programs क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में डीपली पढ़ेंगे हम लोग। तो सेकेंड ब्लॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट, सेकेंड ब्लॉक इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। Okay, any more question? और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग कहेंगे तो फोर्थ ब्लॉक पे चलेंगे, अदरवाइज
फोर्थ यूनिट पे चलेंगे, क्योंकि हमने फिफ्थ यूनिट पे, सॉरी, लास्ट यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक, फोर्थ यूनिट तक हमने पढ़ा है. और आई थिंक this week, in this week, you have to study inside out of all 5 units, and we'll ask question in the next class. Okay, बताइए आप लोगों को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज के क्लास में स्टॉप करूंगा. बाकी की भी क्लासेस आप लोगों की प्रॉपर चल रही हैं? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? Okay, good. Sir, can you explain the cost per bit of storage again? I did not quite understand that one. Okay, no issue. So cost per bit of storage. Basically, cost per bit of storage say, see, two things. I have already explained about 2 points. That is, if you are taking, I have given an example of hard drive. Have you remembered? Yes, sir. So, are you trying to say that we can define it in 2 ways? Like there is an Yes. initial cost, and then the second cost is the time required. Yeah, of course. That is the basically cost per bit. Okay, I understand then. Memory, for memory system. Any more question? Yes, Satya Prakash ji, you have just joined. So you have any question? We have gone through first to 4 unit. Yeah. So you have any question, you may ask. No, sir. Just I had joined late, so I'm just let me. Okay. Basically, we have gone through in last class. We have gone through first and second unit. We have gone through today in third and fourth unit of first block. And I at the end of the class, I want to take all the questions, all the queries, and that's why I'm asking from each and everyone. Okay, sir. Thank you. No. Okay, Aman, have you any question, Aman? No, sir. Okay. Actually, I'm asking only from those people which were who were very interactive in the class session. Yes, Bhupati. Sir, I have a concern about the table. Yeah. So whenever we going to calculate the letter, like example for G, Okay. so we have to start from B7, B6, B5. Then that means a column, then row, right? Yeah, of course. First column and then rows. First column, then row. Yeah. Okay, sir, okay. I'm just opening and explaining that one once again, because I don't want any doubt, to be any doubt from any of you all. It was in second unit, right? Yes. आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Page number 35. ये this one, right? मैंने बताया था कि आप लोग ये मेमोराइज कर लो कि A का 65 होता है, राइट? ये A है, तो A का हमने कॉलम क्या लिखा? 100, राइट? दिस वन. एंड देन ये हो गया. So screen display नहीं है. Okay, sorry. One second. I'm just sharing. Now it's shared. Yes, sir. Now we see. See, the A is there, right? One second. Yes. A is there in this row and in this column. So we'll write column first. Done? And a row from here. Okay. See, bit 1, bit 2, bit 3 is there. Bit 1.
sorry, bits That 7. one bit 7, sir. That is my concern because it's Yes. like comes reverse, sir. Yes. This one is bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. If you are writing from there, you can write like this, this, bit 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7. 5, 6, 7. Otherwise, you can write column first and the row from this one. Okay. Whatever. Is it right now? Clear, sir. देखो, आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। कैपिटल ए का याद कर लो, 65 होता है, तो उसके बाद कंटिन्यूअस होता है जेड तक। Okay. उसके बाद स्मॉल ए का याद कर लो कि 97 होता है, तो उसके बाद कंटिन्यूअस होता है। फिर इसका याद कर लो, किसका, 0 का 9 तक। तो इस सब का अगर याद कर लेते हो तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। इतने से ही आपका जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उनका काम हो जाएगा। जैसे कि आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन देखा और असाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा, राइट? सो यू मे एनीथिंग मोर, बोलिए। कुछ भी और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास का टास्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को। टास्क में क्या होगा? टास्क में होगा फर्स्ट ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन आप लोग ला सकते हैं लाइए। 5th यूनिट आपका पेंडिंग रह गया है, 5th यूनिट में पढ़ाऊंगा। और सेकेंड ब्लॉक का नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा, टारगेट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज 5th यूनिट ऑफ ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 का हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट टारगेट करेंगे हम लोग। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में सेकेंड और थर्ड यूनिट टारगेट करेंगे ब्लॉक 2 का। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक 2 का थर्ड और फोर्थ यूनिट टारगेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा सेकेंड ब्लॉक और उसके नेक्स्ट वीक में हमारा थर्ड ब्लॉक। यानी 3 ब्लॉक्स हैं, तीनों ब्लॉक्स हम लोग 9 क्लासेस में अपना कवर कर लेंगे। सर कल का रिकॉर्डेड वीडियो मिल पाएगा सर क्लास का? क्योंकि कल मैं ट्रैवल में था, मैंने कोशिश कर रहा था और इसलिए बट आई लॉस्ट माय सिग्नल ड्यूरिंग माय ट्रैवल। नो इशू, आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो का रिकॉर्डिंग तो, लेकिन कल मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगले क्लास तक आप लोगों को मिल जाएगा। और अगली क्लास से हर एक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि देखो इसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं हम। अगले वीक तक आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस, ठीक है। एनी क्वेश्चन आप लोग, अभी किसी ने ज्वाइन करे है तो उनको भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मुझे, मैंने नाम सही से पढ़ा नहीं। यस, पद्मनाभम, पद्मनाभम। If you wanted to ask any question, you can ask, because I'm going to stop the class today.